Today we will be discussing about the part 3 of this chapter, uh, the mighty Mauryas. This mighty Mauryas. Here, after the after basically that briefly sojourn to the northwest and return to the Magad, when we witness the decline of the Nanda Empire. When the Nanda Empire was a decline around 321 BC, just a few years after, कुछ टाइम के बाद आफ्टर द अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया, जब अलेक्जेंडर इंडिया को छोड़ गया with his army, a new dynasty and the new empire emerged. एक नया empire emerge हुआ, that was basically Mauryan Empire. Mauryan Empire emerge हुआ and founded by that Mauryan Empire basically founded by इस चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य ने ये हमारा मगध एम्पायर को फाउंड किया and destroy the abandoned by the Nanda Empire. Nanda Empire territories and went to expanding beyond, और इसने और आगे expand कर दिया. तो many accounts Chandragupta Maurya managed this feat with the help of an able mentor. That mentor name was the Kautilya. Basically Kautilya, हिंदी में हम उसे चाणक्य भी कहते हैं. Knowledge of the politics, governance and economics created a empire that remained of the greatest Indian history. Basically Mauryan empire को हम one of the greatest empire मानते हैं Indian history में. Let us discuss about the story of the Kautilya. कौटिल्य की स्टोरी क्या है? कौटिल्य क्या था? बेसिकली कौटिल्य ऑल्सो कॉल्ड द चाणक्य और विष्णुगुप्त भी उसका नाम था. वाज फेमस टीचर ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी. तक्षशिला कहाँ पर है? प्रेजेंटली वेयर इज द तक्षशिला? इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ही वंस advised the king धनानंदा to rule wisely. धनानंदा को उसने एक बार बोला वाइजली रूल करने के लिए सजेस्ट किया, बट द किंग इंसल्टेड हिम. किंग बेसिकली इंसल्टेड हिम एंड थ्रू हिम आउट ऑफ हिज कोर्ट, और अपने उसके कोर्ट से बाहर फेंक दिया था. देन कौटिल्य देन प्रोमिस्ड एंड द नंदा रूल एंड worked with Chandragupta. Kautilya then promised to end the Nanda. नंदा के रूल को एंड करने का उसने प्रॉमिस किया कि मैं इनके शासन को खत्म करके रहूंगा. एंड with the help of this Chandragupta Maurya, he basically overthrown these Nanda dynasty and चंद्रगुप्त मौर्य का इमर्ज हुआ है. Here you see these are the important towns, places like Mathura, Shravasti, Vaishali, Kaushambi, Vidisha, Vaishali, Rajgirh, Champa, Pataliputra, Tamralipti. ये important येलो जो शो हो रहा है, these were the नंदा empires. ये नंदों का एम्पायर शो कर रहा है आपको येलो कलर में जो दिखा रहा है. ही वाज द नंदा एम्पायर. एंड नेक्स्ट हियर नंदा एम्पायर भी बेसिकली काफी बड़ा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे खत्म कर दिया. हियर यू सी कंधार, और ये इतने लंबे एरिया तक ये बेसिकली बाद में नंदों को डिस्ट्रॉय करके मौर्यन एम्पायर येलो पार्ट में ये आपको दिख रहा है. दिस इज शोइंग द इंटायर, दिस इज शोइंग द मौर्यन एम्पायर. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सब एरिया, राजगिरी, अमरावती, साउथ इंडिया तक अमरावती, तोशाली,
Vaishali, Vidisha, Sanchi, Mathura, these areas were ruled by the Mauryan Empire. Here we will be discussing the rise of the Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya कैसे मर हुआ? There are the many stories about the origins and adventures of the Chandragupta Maurya. Here the Kautilya helped and he done the smart planning. Chandragupta Maurya defeated the Nandas and made Pataliputra, modern Patna, his capital. Magad was the basically strong regions because of its rivers, fertile lands, trade routes, and the wealth. So here he defeated the Greek rulers left behind by the Alexander and created a vast empire from northern plains to the Deccan Plateau. Greek ambassador basically named Megasthenes visited Chandragupta Maurya court and wrote about the India in a book that is known as the Indica, though only the small part of the survey today. Actually ना इसने मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा और उसमें बेसिकली इन एरियो का वर्णन किया कि वेयर चंद्रगुप्त मौर्य वाज रूलिंग. सो हाउ दिस राइज ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राइज किया? Here we will be discussing here the many stories about the origins adventures of the Chandragupta Maurya, but the common story क्या है? Common story को हम discuss करते हैं. Here you see Megasthenes in the court of the Chandragupta Maurya. This is the 20th century painting. अशित कुमार हल्दर की ये पेंटिंग है. ये शो कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ये मेगास्थनीज आया था. एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द मगध एस्टेब्लिश बेसिकली द रूल विच पाटलिपुत्रा एज इज कैपिटल. मगध पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बनाया और geographically Magad had the many advantages. What advantages were there? Trade route, बहुत सारे trade routes यहाँ से निकलते थे and it was the combining so many things. So here we are discussing the rise of the Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya empire कैसे rise हुआ? There are the many stories about the regions of the adventures of the Chandragupta Maurya. Here we have already discussed Kautilya का concept of the kingdom क्या था? What was the concept of the Kautilya's ideas of the governance? Here Kautilya had clear vision about the kingdom. राजा के बारे में उसका बहुत ही clear vision था और he had written one of the famous book Arthashastra. Arthashastra basically is the book about the explanation of the run of the kingdom. एक kingdom को कैसे run किया जाए and covering the defense, economy, law and administration. Administration को कैसे चलाया जाए ये उसने अर्थशास्त्र में डिस्कस किया था. Here the Kautilya said king's powers comes from the welfare of his people. अगर राजा अपने लोगों का भला करेगा, वेलफेयर करेगा, तभी वो अच्छा राजा कहलाएगा और पावरफुल किंग बनेगा. तो हियर तो कौटिल्य ये बिलीव करता था, क्या बिलीव करता था?
कि एक राजा ऐसा होना चाहिए कि उसका अपनी पब्लिक पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो कौटिल्य ने एक प्रिंसिपल दिया था, बेसिकली कौटिल्य गिव द प्रिंसिपल ऑफ द सप्तांग प्रिंसिपल, सप्तांग सिद्धांत का एक प्रिंसिपल दिया था। व्हाट वाज दैट? That there will be the one king and his the group of the counselors will be there जो काउंसलिंग के टाइम में राजा से डिस्कशन करके एक अच्छा राज्य चलाने के लिए वेरियस सजेशंस वो देंगे। मिनिस्टर्स एंड अदर्स हाई ऑफिशियल्स वर देयर, दैट इज नोन एज द अमात्यास। देन territory of the states along with the populations inhabiting जनपदास, जनपदा में टेरिटरी ये किसान और ये सभी लोग होंगे। और उसका जो राजा का ये किला होना चाहिए और टाउन होना चाहिए, दैट मस्ट बी द फोर्टिफाइड, दुर्ग चार दीवारी से फोर्टिफाइड होना चाहिए, चार दीवारी लगी हुई होनी चाहिए ताकि ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, दैट मस्ट बी द प्रोटेक्टेड किंगडम। एंड राजा के पास ट्रेजरी होना चाहिए, खजाना हो जाना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ ऑफ द किंगडम, कोष जिसे उसने कोष कहा है। और द फोर्स होना चाहिए, फोर्स, डिफेंस एंड द लॉ एंड ऑर्डर, दंडा ये उसने कहा है। एंड दी अलाइजेस, मित्र होना चाहिए, अलाइजेस होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, ये उसने कौटिल्य ने अपने किंगडम के बारे में एक सजेशंस दिया है। So here you see the economic, administration, justice and urban planning, agriculture and welfare, and the most of the important political concept is the सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया था वो होना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत होगा तो एक अच्छा किंगडम एस्टेब्लिश हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, सप्तांग टुगेदर मस्ट क्रिएट अ सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रॉस्परस किंगडम होना चाहिए, टू बी मेंटेन द बोथ थ्रू वॉरफेयर, थ्रू अलायंसेस एंड अलायंसेस फॉर द पीस, डिफरेंट अलायंसेस होने चाहिए और पीस को स्थापित करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ही ऑल्सो डिटेल्ड many laws and deal with the corruptions, करप्शन से डील करने के लिए बहुत सारी प्रिंसिपल्स उसने बताए। स्पेसिफाइड पनिशमेंट भी बताए कि कैसे कैसे पनिशमेंट होने चाहिए फॉर एनी एक्टिविटीज दैट वर अगेंस्ट दी वेल बीइंग ऑफ द पीपल। सो ये कौटिल्य ने बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट में बताया। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य से अ किंग शैल इंक्रीज हिज पावर, राजा को अपनी पावर इंक्रीज करना चाहिए। कैसे इंक्रीज करेगा? प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की के बारे में ज्यादा वेलफेयर मोटिव, वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क करके। एंड पावर्स कम फ्रॉम द कंट्री साइड, पावर कहाँ से? लोगों से ही आती है, विच इज द सोर्सेज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो द शैल शो द स्पेशल फेवर्स टू दोज इन दी कंट्री साइड, जो जिस उसके साम्राज्य में जो लोग रह रहे थे, कंट्री साइड में जो लोग रह रहे थे, उनके वेलफेयर के बारे में राजा को हमेशा सोचना चाहिए। सो हु डिड द थिंग्स बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, सो राजा को ऐसे कार्य करना चाहिए जो मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएं लोगों को। जैसे किस टाइप के कार्य होने चाहिए? बिल्डिंग द embankment, road, bridges and the beautifying the villages and the helping to the protect them, and लोगों की सेवा करना चाहिए। and fortifying wall, जो शत्रु से उनकी रक्षा कर सके, इस टाइप की वो इस टाइप का साम्राज्य होना चाहिए। सो हियर द कौटिल्य सेंट्रल फिलोसफी क्या थी गवर्नेंस के बारे में? कौटिल्य सेंट्रल फिलोसफी अबाउट द गवर्नेंस इन द ट्यून विद द
Indian values and happens in this subject to the king happiness. अगर राजा की प्रजा सुखी रहेगी तो राजा भी सुखी खुशी रहेगा, खुश रहेगा। तो उसने वेलफेयर के बारे में बात किया है कि उसके राजा का किंगडम वेलफेयर किंगडम होना चाहिए। So here you see the king who choose the peace. कौन से राजा who choose the path of the peace, like Asoka. One of the king was the Asoka. Asoka ने क्या किया था? मौर्यन डायनेस्टी का अशोका in 268 BC to 232 BC. What Asoka done? Asoka basically include the present day of the Pakistan, Bangladesh and the Afghanistan. So, but after the Kalinga war in Odisha, Asoka saw the terrible suffering caused by the violence. तो violence से उसे बहुत ही दुख सा हुआ कि violence नहीं करना चाहिए and this changes heart. उसने इससे अशोका का पूरा हार्ट चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? Then he decided to follow the peace of the पीस का रास्ता उसने अख्तियार कर लिया, पीस का रास्ता चुन लिया और वायलेंस को छोड़ दिया। एंड बेसिकली अशोका वाज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिज्म। अशोका के वेरियस रॉक एडिक्ट से भी हमें पता चलता है कि कैसे उसने पीस को चुन लिया, पीस के रास्ते को चुन लिया। वेरियस रॉक एडिक्ट में हमें उसके धर्म चक्र परिवर्तन के मैसेजेस मिलते हैं, मोरल ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। वेरियस रॉक एडिक्ट पे मोरल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। वेरियस रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स आर देयर एंड on these pillars, rock addicts, it has been written Devanpriya. He called himself as a Devanpriya. Devanpriya क्या होता है? Beloved of the God. God का, भगवान का चाहने वाला। One who is the kind to all. ऐसा राजा जो सभी के लिए बहुत ही दयालु है। So these edicts were basically written in Prakrit language. प्राकृत लैंग्वेज में ये लिखे हुए हैं एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, जिनकी स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। तो अशोका ने क्या किया था? प्रमोटेड द काइंडनेस एंड जस्टिस एंड ट्रुथ, ट्रुथ का रास्ता अपनाया था एंड बैन द अननेसेसरली एनिमल किलिंग्स एंड हंटिंग्स को भी उसने रोक दिया था कि हंटिंग्स अननेसेसरी लोग नहीं करेंगे। एंड बुद्धिस्ट मिशनरी के लिए उसने क्या किया था? वेरियस मैसेंजर्स उसने भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे, थाईलैंड और द सेंट्रल एशिया में उसने बुद्धिस्ट मिशनरी के कई लोगों को वहां पर भेजा। एंड ही बेसिकली एनकरेज द रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन का वो रेस्पेक्ट करने वाला किंग था। तो अशोका क्या था? openly admitted the pain of the कलिंगा वार। कलिंगा वार से जो उसे दुख हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उससे काफी उसे अशोका को दुख हुआ था। अशोका and his edicts basically tells us the story of the कलिंगा वार। कलिंगा वार की स्टोरी हमें बताते हैं and could have chosen the mention and maintain the images as the peaceful। वो बाद में फिर पीस का रास्ता उसने चुन लिया था। So embracing the Buddhist teachings, Asoka sent various peoples, as we have already discussed. Here you see अशोका के बहुत सारी जगह से वेरियस एडिक्ट रॉक एडिक्ट पाए गए हैं, वेरियस माइनर रॉक एडिक्ट पाए गए हैं, पिलर एडिक्ट पाए गए हैं, माइनर पिलर एडिक्ट पाए गए हैं। कहाँ से मिले?
कौशाम्बी से, बैराज से, धौली से, ये उसके मास्की और ये उसके वेरियस रॉक एडिक्ट और इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे अशोका के हमें मिले हैं। A few of the many Ashokan edicts across the subcontinents हमें उसके वेरियस इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। So here edicts of the Ashoka called himself as a देवनप्रिय। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि देवनप्रिय अपने को उसने बुलाया है। और आगे देखते हैं। Here don't miss out when we will read it out. Dharma in Prakritik is what? Already we have discussed in class 6. Now let us explore Asoka detail instructions on the conduct of his officials. अशोका ने अपने ऑफिशियल के कंडक्ट के बारे में भी डिस्कस किया है कि उसके ऑफिसर्स को कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। लाइफ इन मौर्यन पीरियड में लाइफ कैसी थी। सिटीज लाइक पाटलिपुत्रा वर bustling centers of the governance. That was basically bustling centers of the governance and commerce का center था। They had placed the public building and the well planned street. उन्होंने बहुत ही planned streets बनाई with well organized taxation भी उनका बहुत ही well organized था और brisk trade किया and the treasury remain strong. उनकी ट्रेजरी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी and empire growth and the prosperity was there. So Ashok basically was a very good ruler and later on he adopted the path of the peace. बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जैसे सोहा गोरा कॉपर प्लेट से हमें पता चलता है that is basically belong to 4th and 3rd century BC की जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है एंड discovered in Sohagora that is basically found in Uttar Pradesh that is written in Prakrit language and using the Brahmi script and believe have been issued during the regions of Chandragupta Maurya. The inscriptions mention the establishment of granary to store the grain. कैसे बड़े-बड़े ग्रेनरी होने चाहिए और वो कैसे ग्रेनरी हेल्पफुल होती हैं जो बहुत से अकाल पड़ने के टाइम पे ये ग्रेनरी मौर्यन एम्पायर में हेल्पफुल थी जिससे लोगों की मदद होती थी। एक मेगास्थनीज ग्रीक ट्रेवलर्स आया था यहाँ पर लाइट ऑफ द सोसाइटी। ही वाज बेसिकली ग्रीक ट्रेवलर्स क्या बताता है वो हमारे इस एम्पायर के बारे में बताता है वेरियस एम्पायर्स के बारे में। एक बुक उसने लिखी थी दैट बुक वाज बेसिकली इंडिका बुक वाज रिटन बाय द मेगास्थनीज एंड ये किसके बारे में ये इंडिया के बारे में डिस्कस करता है और यहाँ पर बहुत सारे ये ब्लैक स्मिथ पॉटर्स कारपेंटर्स ज्वेलर्स रहते थे उनके बारे में उसने बताया। लिव्ड इन द सिटीज एंड सिटी वाज द वेल प्लान्ड और उस टाइम पे ये सिटी सभी वेल प्लान थे और कम्युनिकेशंस हैपेंड थ्रू द कुरियर्स। जो कम्युनिकेशंस भी डिफरेंट कुरियर के माध्यम से होता था एंड हाउसेस वर मेड ऑफ द वुड। लकड़ी के घर बने हुए थे एंड could up to straws tall and the street had vessels of the water stores at regular intervals of the case of fires. So well planned street थी इसमें पानी के निकलने की अच्छी सुविधाएं थी। So later account में हम क्या देखते हैं described in the cotton dresses के बारे में बताया गया है। Peoples were wearing cotton dresses and lower garment basically that was reached to below the knees halfway down to the
ankles and the upper garment that they threw over their shoulders. गारमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया किस टाइप के ये गारमेंट्स बेसिकली पहनते थे. सो हियर 5.20 फिगर्स में क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मैनी मैसेजेस फॉर अस अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द परफेक्शंस ऑफ द स्कल्पचर्स एंड द फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ द मौर्यन आर्ट्स. ये मौर्यन आर्ट्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल है. दिस capital word which were means the top portions of the head was the top of the pillar that Ashoka got erected at the Sarnath. ये हमें सारनाथ से इंस्क्रिप्शन मिला है. and Ashoka got erected Sarnath near Varanasi, that is near to Varanasi, where the Buddha gave his first preaching sermons. at the Sarnath में ही बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग का लेक्चर वहां पे दिया था. एंड 4 लॉइन सिंबल्स रॉयल पावर्स ऑफ द रिंग below 4 powerful animals are there: elephant, bulls, horse, and the one more is lion. So these are depicted along with the Dharam Chakra, wheel of the Dharma, which is symbolize the Buddhist teaching. Buddhist teaching ये इंडिकेट कर रहा है बुद्धिस्ट टीचिंग को. और 4 पावरफुल एनिमल्स डिपिक्ट किए गए इसके ऊपर. ये पिलर इंस्क्रिप्शंस हमें अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस मिला है. उसके बाद में हम देखते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मौर्य लाइफ एंड पीपल. हियर ये मौर्यन टाइम के हमें इंस्क्रिप्शंस में ये मिले हैं. ये बेसिकली फीमेल डाइटी और ये टेराकोटा फिगर्स मिले हैं और होल्डिंग फ्लाई विस्क एंड ये हेड ऑफ द टेराकोटा हॉर्स ये मिला है. एंड टेराकोटा सब मातृकास मदर्स ऑफ द गॉडेस ये इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं. देन हम इनकी आर्किटेक्चर को देखते हैं. आर्किटेक्चर में क्या है? ये सांची का स्तूप है. बेसिकली वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन structure, the great stupa that was the Sanchi, at the Sanchi, among the finest examples of the Indian architecture. This is the one of the finest example. और ये भी inscriptions हमें मिले. रॉक स्कल्पचर मिला है कहाँ पे? लाइफ साइज एलिमेंट एट द धौली, ये धौली से मिला है हमें. और आगे चलते हैं. ये इमेज सत्यमेव जयते जो आजकल हम अपने करेंसी पे भी पाते हैं, रुपीस में हमें दिखाई देती है. दिस इमेज बेसिकली इज द familiar to the some of you. Indeed, this is the capital was chosen as the India's national symbol. ये नेशनल सिंबल में भी हमने सिलेक्ट किया है और ये बेसिकली हमारे इंडियन करेंसी के ऊपर भी इनका सिंबल है. Then here you see hoard of the Mauryans, punch marked coins हमें बहुत सारे मिले हैं. Then fragile nature of the empire. Fragile nature of the empire क्या था? Fragile nature. Here fragile nature of the empire में हम क्या पढ़ेंगे? Empires elsewhere in the world. बहुत सारे वर्ल्ड में और एम्पायर थे, जैसे रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर एंड सो ऑन. और भी बहुत सारे एम्पायर थे. ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग गॉन, बहुत लंबे टाइम तक चले. बट हिस्टोरियन कीप डिबेटिंग ऑन दी कॉजेज ऑफ देयर डिक्लाइन. उनके डिक्लाइन क्यों हुआ, इन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन बेसिकली बॉन्डिंग अगर कमजोर हो जाती है तो ये एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं. तो एम्पायर्स आर देयरफॉर बेसिकली समटाइम पैराडॉक्स. एंड one hand then can be bringing the political unity for Mauryan empires did almost the entire subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में इन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी मौर्यन एम्पायर्स की काफी अच्छी थी. अब पॉलिटिकल यूनिटी अगर नहीं रहेगी तो एम्पायर फ्रेजाइल होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे और एक दिन टूट जाएंगे. सो हियर
महापद्मनंदा के बाद ये अजातशत्रु महापद्मनंदा ये शो कर रहा है। इसके बाद ये कमजोर एम्पायर हो गया था नंदा डायनेस्टी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य केम इनटू द पावर इन 321 BC एंड देन उसके बाद में अशोका ने रूल किया 200 से 185 BC एंड नंदों के बाद ये मौर्यस आए। मौर्यस के बाद में ये एक थोड़ा सा ये एम्पायर हमारे फ्रेजाइल होना शुरू हो गए, मतलब कमजोर होना शुरू हो गए थे। तो here Chandragupta Maurya founded the Mauryan Empire with Kautilya's help. Kautilya's Arsas taught how to rule. तो कौटिल्य ने काफी Kautilya was very intelligent minister and who helped the Chandragupta Maurya how to establish a very good kingdoms. Here you see the empire is the large territory made up by the many smaller kingdom. बहुत सारे smaller kingdom में मिला के एक बड़ा empire establish किया. And the first empire of the India emerged in the regions blessed with the abundant nature's resources, rivers, irrigations and the transportations. The Mauryan created a वास्ट एम्पायर। मौर्यों ने क्या किया, एक बहुत बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश किया एंड लास्टेड सेंचुरीज। द लीगेसी इंक्लूड द स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रूट्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द कॉइन्स एंड ट्रेड, वेल डिजाइन्ड अर्बन सेटलमेंट एंड द एलेबोरेट सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एम्पायर इस्टेब्लिश किया मौर्यों ने। और इसके बाद में हम पार्ट 4 में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द 4th वीडियो अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। ऑल important question answer will be discussed in the 4th part of this video. Thanks for watching.